Everyone, this is your socials class, and today we will study chapter 10 in your geography. And the name of the chapter is Life in Different Climatic Regions. So, let's start with our chapter Life in the Desert Regions. Deserts are dry places having less than 25 centimeter rainfall in a year. As a result, the vegetation cover is scant. There are three types of deserts. डेजर्ट्स जो हैं वो ड्राई प्लेसेस सूखी जगह होती हैं जहाँ पर रेनफॉल एक साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और इसी वजह से जो वेजिटेशन वहाँ की होती है इट इज़ वेरी स्कैंट, बहुत कम होती है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स एंड तीन तरीके के डेजर्ट्स होते हैं. हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, कूल और टेम्परेट डेजर्ट्स एंड कूल और पोलर डेजर्ट्स. फर्स्ट, hot and tropical deserts. These deserts are located within the tropics between 20 degree and 30 degree latitudes north and south of the equator. जो hot and tropical deserts होते हैं वो ट्रॉपिक्स में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ साउथ टू इक्वेटर में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सहारा एंड कालाहारी डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, द थार डेजर्ट इन इंडिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड द मैक्सिकन डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका. कूल और टेम्परेट डेजर्ट्स. These deserts are found in the temperate regions between 30 degree to 55 degree latitude of both hemispheres. जो cool and temperate deserts होते हैं वो temperate regions में पाए जाते हैं between 30 degree to 55 degree latitude of both hemispheres, and they are located in the interior plateaus and basins of Asia and North America. For example, Mongolian and Gobi Desert and Ladakh region. Scanty rainfall and severe winters are characteristic features of cool and temperate deserts. And बहुत कम रेनफॉल और बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इन कूल और टेम्परेट डेजर्ट्स के. कोल्ड और पोलर डेजर्ट्स. Cold deserts are located in the north of 60 degree latitude and south of 60 degree latitude. Are areas of permanent ice which melts during short summers. जो कूल एंड पोलर डेजर्ट्स हैं ये वो जगह हैं जहाँ पर परमानेंट आइस होती है, बस थोड़े जो समर्स का टाइम पड़ता है, वेरी शॉर्ट समर्स का, उनमें ये आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है. Let us examine two different desert locations to understand the relationship between people and environment. The Sahara Desert. Sahara in Africa is the world's largest desert. It is a hot desert that extends over almost 10 countries across North Africa, from the shores of Atlantic Ocean in the west to the Red Sea in the east. Towards the south, it slowly merges into the tropical savanna grasslands. It stretches over Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, Chad, Niger, Mali, Mauritania, Morocco and Sahrawi Republic. जो सहारा डेजर्ट है it is the world's largest and hot desert जो कि almost 10 कंट्रीज़ के ऊपर एक्सटेंड हुआ है. Now moving on, Ladakh. Ladakh's physical features are: Ladakh lies between the Karakoram and Zanskar ranges. The heights of its mountains vary from 2500 meter to 6000 meter. The Karakoram range has high glaciated mountains and plateaus. Mount Godwin Austen or K2, the second highest peak in the world, is located in the Karakoram range. The river Indus snakes through the area diagonally from the southeast to the northwest. The Ladakh range has an average height of 6000 meter with no major peaks. The river Shyok, a tributary of the Indus, brings melted waters from the glaciers of the Karakoram range. जो लद्दाख के जो फिजिकल फीचर्स हैं, इट लाइज बिटवीन द काराकोरम एंड जंस्कार रेंजेस. ये काराकोरम एंड जंस्कार रेंजेस के बीच में लोकेट करता है एंड इन माउंटेन्स की हाइट जो है वो 2500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक वेरी करती है एंड इट हैज़ वेरी हाई ग्लेशिएटेड माउंटेन्स एंड plateaus. Now moving on to the climate of Ladakh. Ladakh is a cold dry desert situated on the leeward side of the Himalayas. It falls in the rain shadow region and so it does not get much rain from the southwest monsoon winds. In the winter season, the westerly winds provide heavy snowfall. Ladakh का जो climate है is very cold and क्योंकि ये लीवर्ड साइड हिमालय की लीवर्ड साइड पर लोकेट करता है
तो इट फॉल्स इन द रेन शेडो रीजन, तो ये रेन शेडो रीजन में आता है एंड इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से। विंटर सीजन में जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो यहाँ पर काफ़ी हैवी स्नोफॉल दे जाती हैं। There is little or no atmospheric moisture at altitudes of 3500 मीटर एंड अबव। यहाँ पर या तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इन एल्टीट्यूड्स में। ड्राई एंड कोल्ड विंड्स ब्लो ओवर द वैली रिजल्टिंग इन विंटर टेम्परेचर्स बिलो 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। As rainfall is almost negligible, the water supply is mostly through seasonal streams that bring water from higher altitudes. क्योंकि रेनफॉल जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत ना की बराबर होती है, इसी वजह से जो वाटर सप्लाई है यहाँ पर वो सीजनल स्ट्रीम्स से मिलती है जो कि हायर बहुत ऊंचाई से आती है। क्लियर स्काइज रिजल्ट इन हाई डे टेम्परेचर, और जिस दिन बादल बिल्कुल साफ होते हैं उस दिन टेम्परेचर जो है वो तापमान बहुत हाई होता है, बहुत ऊपर रहता है पारा। लद्दाख रीजन एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट। इट इज़ ऑफन सैड दैट इफ अ पर्सन सिट्स हियर इन द सन विद हिज फीट इन द शैडो ही मे सफ़र फ्रॉम सन स्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट एट द सेम टाइम। लद्दाख रीजन का जो क्लाइमेट है वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर सूरज में बैठे और अपनी जो फीट हैं वो छाँव में रख कर बैठे तो वो सन स्ट्रोक के साथ साथ फ्रॉस्ट बाइट से भी सफ़र कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द वेजिटेशन, only thorny bushes grow in these parts and even they are scattered. Chinese traders introduced the scabbard from the bushes that are found here. Large scale afforestation of willow and apricot trees along seasonal streams is gradually increasing rainfall here. Tree plantation has also checked soil erosion. सिर्फ जो थॉर्नी बशेस होती हैं जिनमें कांटे होते हैं वही यहाँ पर ग्रो करती हैं और हर जगह फैली होती हैं। चाइनीज़ ट्रेडर्स ने स्कैबक्स इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पर, और लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन होता है विलो का और एप्रिकॉट ट्रीज़ का और यहाँ पर ट्री प्लांटेशन जो है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन भी चेक किया जाता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख। Ladakh has a population of 2 lakhs spread over 2 districts of Leh and Kargil. The religions followed here are Buddhism and Islam. On the whole, people are strong and sturdy and have adapted well to the very harsh environment. They rear goats that provide pashmina and process this expensive wool. Almost every family keeps some livestock such as yaks, sheep and goats. Yak is the best of burden and also provides milk and butter. Tents are woven out of yak hair at heights less than 3000 meter. An early yielding variety of wheat is grown. Elsewhere, barley is widely grown. Crops can only be grown in the short season from May to September. Even though temperatures are quite low, the radiant heat from the sun is enough to grow seasonal vegetables like spinach, peas, cauliflowers, carrots, turnips and beans. लद्दाख की जो पॉपुलेशन है इट इज़ अबाउट 2 लाख एंड ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है फ्रॉम ले टू कारगिल। और जो रिलीजन्स यहाँ पर जो लोगों का धर्म है वो बुद्धिज़्म एंड मेनली इस्लाम होता है। एंड ऑन द होल जो यहाँ के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी होते हैं और उन्होंने खुद को वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया होता है, वहाँ के इन्वायरमेंट के, वहाँ के इतने हार्श इन्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग रह रहे होते हैं। दे हैव अडाप्टेड वेल एंड वो बकरियां चराते हैं और पश्मीना प्रोवाइड करते हैं वूल को अपना बिजनेस के लिए। और हर फैमिली जो है कुछ ना कुछ लाइव स्टॉक रखती है जिसमें कि याक्स, शीप एंड गोट्स आते हैं। बाकी यहाँ पर क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं मई टू सितंबर से लेकर, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत लो रहता है इसी वजह से जो सूरज की रेडिएंट हीट होती है वो काफ़ी होती है सीजनल वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए, जैसे कि स्पिनच, पीस, कॉलीफ्लावर्स, कैरेट्स, turnips and beans. This is a recent development. Tourism is an important trade. In spite of the inhospitable conditions, they have made many efforts to improve their lifestyle by improving the means of transport and communication, tapping the potential hydel power, introducing and developing irrigation, growing poplar and willow trees for firewood, and improving the local breeds of livestock. Now, life in tropical and subtropical regions. The region between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, roughly between the latitudes of 20 degree north and 20 degree south, receives maximum heat from the sun throughout the year.
जो रीजन होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, इन्हें सबसे ज़्यादा हीट मिलती है पूरे साल में। द एंटायर बेल्ट इज नोन एज द ट्रॉपिकल रीजन, और इस पूरी बेल्ट को ट्रॉपिकल रीजन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ क्लोज टू द इक्वेटर, हॉट एंड वेट ऑल ईयर राउंड। द वर्ल्ड्स largest tropical rainforest lies within this belt as the Amazon River basin of South America. Beyond the tropics between 20 degree to 40 degree in both hemispheres, the sun's rays do not fall vertically overhead all year. As a result, the climatic conditions in the belt differ from being tropical for a part of the year to nearly tropical all year. क्योंकि यहाँ पर जो सन्स रेज होती हैं वो वर्टिकली फॉल नहीं करती हैं, इसकी वजह से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं यहाँ की वो डिफ़र करती हैं ट्रॉपिकल से लेकर फ्रॉम नियरली ट्रॉपिकल टू ऑल ईयर. They fall under the influence of the trade winds that blow from sea to the land in summers and reverse their direction in winter. We refer to it as subtropical region. The Ganga-Brahmaputra basin lies in the subtropical region. एंड जो इस इन्फ्लुएंस की जो विंड्स होती हैं जो कि सी से लेकर लैंड तक समर्स में ब्लो करती हैं एंड अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेती हैं विंटर में, एंड इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. और जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है. ट्रॉपिकल रीजन, द अमेज़न बेसन. The Amazon rainforest, with an area of approximately 5.2 million square kilometers, spreads over 6 countries of South America: Peru, Brazil, Ecuador, Colombia, Venezuela, and Bolivia. Amazon River is the most voluminous in terms of water content. A network of nearly 1,500 big and small tributaries transfer their waters into the main river channel before it flows into the Atlantic Ocean. The mouth of the river forms a wide estuary. जो लोकेशन है अमेज़न बेसिन की वो इस तरह से है कि इट स्प्रेड्स ओवर 6 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका, एंड यहाँ की जो अमेज़न रिवर है ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस रिवर है जिसमें कि सबसे ज़्यादा पानी आता है. इसका क्लाइमेट जो है, द अमेज़न बेसिन हैज़ हॉट एंड सल्ट्री क्लाइमेट. वो हॉट और सल्ट्री रहता है पूरी साल भर. इट रिसीव्स एन एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर, और एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होती है 150 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर तक. द एवरेज टेम्परेचर रिमेन्स अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है. हाई हीट एंड हाई ह्यूमिडिटी रिजल्ट्स इन एन इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट. द एरिया एक्सपीरियंसेस रेनफॉल ऑलमोस्ट एवरी डे, और जो हाई हीट और हाई ह्यूमिडिटी होती है वो इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट में रिजल्ट करती है, और इस एरिया में बहुत एवरी डे रेनफॉल होती है. नेचुरल वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल रीजन इज सेल्वास, और यहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो सेल्वास है. दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, और इन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रोफ्यूजन ऑफ फॉरेस्ट एंड दैट एड ऑक्सीजन टू द एयर. क्योंकि जो फॉरेस्ट की वजह से ऑक्सीजन ऐड होती है एयर में, दैट इज वाई. एक्सट्रीमली ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑल ईयर रिजल्ट इन अ डेंस वेजिटेशन कवर. अ वैरायटी ऑफ trees grow closer to form a thick canopy, and very little sunlight reaches the ground. Vegetation in the Amazon basins grow in distinct layers or tiers. Trees tower the rest of the forest and may reach a height of over 50 meters. The second layer is generally 20 to 50 meters high. Ferns, orchids, and mosses grow on the trunk of these trees. In the third layer, smaller trees, shrubs, and saplings of the tallest layer are found. यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से ट्रीज ग्रो करते हैं, कितनी लेयर्स में होते हैं, कैसे होते हैं. ऑल आर गिवन हियर, कौन से पेड़ लगे होते हैं, क्या ये ट्रीज उगाते हैं. एंड देयर आर एन एस्टिमेटेड 40,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज टू बी सीन. और यहाँ पे 40,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं. यहाँ की जो एनिमल लाइफ है वो है मंकीज, जागवार्स, डियर्स, टापर्स, आर्मेडिलोर्स एंड एंटीटियर्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट. स्नेक्स एंड लिजर्ड्स ऑल्सो क्रॉल हेयर, यहाँ पर होती हैं ग्राउंड में. और देर आर सम अबाउट 30 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स and nearly 1,500 different species of birds including parrots, toucans, parakeets, and mascots, crocodiles, and turtles, and nearly 3,000 species of fish including the breaded piranha are found in the river water. ये सारे species river water में, ground में, सब जगह पूरे पाए जाते हैं. यहाँ के लोग जो हैं
डेंगू, मलेरिया एंड येलो फीवर आर कॉमन इस रीजन में, ये चीज़ कॉमन होती है। द इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट एंड डेंस फॉरेस्ट मेक द अमेजन रेन फॉरेस्ट अनसूटेबल फॉर द हैबिटेशन। और जो इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट है यहाँ का और जो डेंस फॉरेस्ट है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट को अनसूटेबल बनाता है लोगों के रहने के लिए। जो पॉपुलेशन यहाँ पाई जाती है वो नेटिव्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव कंडीशंस में रहते हैं। दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स, जो कि एनिमल्स को मार के उनके ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। Life in temperate grasslands. The temperate grassland regions are located in the interior of continents in the mid-latitudes, extended roughly between latitude 30 degree to 55 degree in both the hemispheres. They are known by specific names in the different parts of the world. जो temperate grassland regions हैं वो interior continents में रहते हैं, in latitudes में, both hemisphere में। ये अपने specific names की वजह से जाने जाते हैं। These are prairies in North Americas and steppes in the Central एशिया, यूरोप एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। इन नामों से ये जाने जाते हैं। पैम्पाज इन साउथ अमेरिकाज एंड बेल्ट्स इन साउथ अफ्रीका। दीज आर द नेम्स बाय विच पीपल नो देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दे represent transitional zones between the mid-latitude deserts on the west and the cool humid regions on the east in each continent. The difference between day and night temperature is very high. और जो day and night temperature के बीच का difference होता है वो बहुत high होता है। Very few trees grow here but the rainfall is sufficient. यहाँ पे बहुत कम पेड़ उगते हैं लेकिन जो rainfall होती है वो sufficient amount में होती है। A luxuriant growth of grass is possible in this cool climate. These areas are hence referred to as temperate grassland. क्योंकि यहाँ पे लग्जूरियन ग्रोथ होती है ग्रास की कूल क्लाइमेट में भी, इसी वजह से इन्हें टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहा जाता है। द ग्रासलैंड्स वर ओरिजिनली होम टू ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक द फास्ट फूटेड बाइसन इन प्रायरीज, वाइल्ड बफेलोज इन पाम्पास एंड वाइल्ड हॉर्सेज इन एशियाटिक स्टेप्स दैट सेमी नॉमेडिक एंड नॉमेडिक ट्राइब्स ऑफ इन टेम। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो यहाँ पे होम होते हैं बहुत सारे एनिमल्स का जो कि यहाँ पे घास खाते हैं। ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव मॉडिफाइड द ओरिजिनल लग्जूरियन ग्रासेस एंड रिप्लेस देम विद एक्सटेंसिव व्हीट फील्ड्स और कैटल फार्म्स वेयर स्पेशल ग्रास एंड फॉडर ग्रोज इन फील्ड्स। यहाँ पर सेंचुरीज़ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो मॉडिफाइड हुई हैं टू फॉर दीज ओरिजिनल लग्जूरियन ग्रासेस एंड यहाँ पे व्हीट फील्ड से इनको रिप्लेस भी किया गया है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल।